goal without a deadline, without a timeline, without this thing is fantasy. So when students come to me with their planner, सर मेरा गोल है पॉलिटी करूंगा, हिस्ट्री करूंगा, इकोनॉमिक्स करूंगा, फैंटेसी. ये सुनो तो आपने somebody is asking how to improve English. You want to improve English? You have been looking to improve English for last 10 years. वैसे रहेगा, it will stay as fantasy, it will not change. Get that? तो क्या चाहिए? Deadline चाहिए. Goal with a deadline, or dead is not a word which I like. Timeline चलेगा? Time limit. Yes. This becomes an objective. This is where I say, if you want to, say for example, somebody said, I want to improve my English, tell me what date. Otherwise, this will always be a want. Remember, apart from academic, you had your goals. Decide a date. Date नहीं decide कर रहे हो तो that goal is not going to come. That's my promise. वो आने ही नहीं वाला है. That's just fantasy. You've been talking about मैं ये करूँगा, वो करूँगा. That's what we are talking about. True? Now, goal plus timeline. Now there is a timeline and time goes. You make timetables, yes or no? Timetable बनाते हो, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो होता नहीं है. Why does it not happen? So when people come to me, ask them, what is your plan? You've decided your day that I'm going to use this time for study, this time to relax, this time for food, this time for exercise, whatever you want. I'm saying if you have a fitness goal, वो भी डाल दो. डांस का गोल डालना है, डांस करो, एक्सरसाइज करो, जो करना है करो. So I remember some of my students who said कि सर टाइम टेबल में हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें डांस का टाइम चाहिए, because that's my hobby. That's a good thing. Yes or no? Sir, I can understand English, but I will not be able to speak. यही समस्या है. तुम कोई नए नहीं हो, ये पहली बार आया. सर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और है क्या इंग्लिश में दिक्कत? अब एक बात बताओ, ही सिटिंग इन इंग्लिश मीडियम. तो इंग्लिश मीडियम में जब हिंदी वाला आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है? समझ तो आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ. फिर इसको दे दो हिंदू न्यूज़पेपर, फिर इसको लगेगा समझ भी नहीं आ पा रहा है. सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी होगा. सो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स. आई एम सेइंग, अगर आपको लैंग्वेज पिक करनी है, इफ यू वांट टू पिक योर लैंग्वेज, यू विल हैव टू यूज इट. यू आर लिस्निंग टू अ टीचर विद हिज लिमिटेड इंग्लिश. मुझे ही अपना इंग्लिश गुरु मान रहे हो तो क्या ही मिलेगा यार. I'm saying the more I stay with the language, whether I listen to it, whether I speak that language, whether I use that, then only that will happen. So I'm just giving you food for thought. I'm talking about UPSC again. First of all, your goal is maybe IAS, IRS. Yes. You did not decide which year, so आज decide कर लो. ये 26 का है. 26 का decision means 26 will be prelims, 26 will be mains, 27 will be interview. 27 में फिर result आएगा. That's what we are talking about. Now just having a time is not enough. उसके लिए plan भी करना होगा. So accordingly we plan for the year. Say for example, just to give people for UPSC, मैंने आपको एक time limit दी है. क्या दिया है? 10th March. GS का syllabus खत्म करो. 10th March तक सिलेबस खत्म होना चाहिए. सो आर यू रीडिंग योर NCERTs? मेरे बिना पढ़ाए भी पढ़ सकते हो ना. डिड यू गेट कॉन्फिडेंस और नॉट? यार ये तो खुद भी कर सकते हैं. व्हेन द टीचर टीचेस इट्स बेटर. यस और नो? एंड डू वी गेट द PYQs आल्सो? डू दैट ना, जिसकी भी जो बुक है. और कुछ नहीं तो KGS की बुकलेट है. आई एम ओके विद इट. आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि आई एम कॉन्फिडेंट माई इंस्टीट्यूट हैज प्रोवाइडेड मी बुक्स एंड आई शुड स्टिक टू इट. कोई टेंशन नहीं. ठीक है सर, PYQ में मिसलेनियस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसको कहां से कवर करें? सी, let us be clear about this, very clear about this. In this examination where cutoff is also not even 50%, yes, she is asking me miscellaneous का बताओ कहां से करें. तुम कोर क्यों नहीं करोगे?
Why would we not do core? So there are people who would say, sir, how do I prepare for exceptions? Tell me who's a smarter person, who would prepare for exception or the rule? Rule. तो रुचि जी, ये आपने बोल तो दिया मिसलेनियस जहां से ज्यादा आते हैं, कौन सा क्या सैंपल सेट है आपका, मिसलेनियस कहां से आते हैं? अभी तो इनकी तैयारी भी नहीं है, probably just started preparing for the examination and she says miscellaneous. आपके लिए सभी miscellaneous है because you do not know the core. True or not? I'm just talking about that. Very simple. If you have gone through the text, your teachers have told you what is the course, what is the syllabus, you looked at PYQ, you will not come up with this thing कि sir miscellaneous. और आपको मैं अभी बता सकता हूँ स्टैटिक क्वेश्चन से हमारा एग्जाम पास हो जाएगा. ज्योग्राफी के तो कुछ 7-8 थे, वो एज इट इज हो रहे थे, 8 या 9 हमारे पास हो रहे थे. एनवायरनमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस तो स्ट्रेट बुक से होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, आराम से उठेगा यार. ट्रू. सो let's not deviate this thing by such things, and please avoid the company of such people. ये जो टाइम है अब आपके पास, ये 4 महीने, don't be in the company of such people. Remember that student who used to ask me, भाई तूने ये किया ये किया, I used to tell him मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन सा टॉप करने वाला हूँ. I prelims is about clearing and this is an exception, I am not worried about it. True or not? So I am focusing on the rule, I am focusing on the core, exception. And I also want to tell you, luck favors the brave. जब आपका कोर रेडी है ना, उस दिन तुक्के भी सही लगेंगे. आई एम तो वेरी क्लियर ऑन दैट एंड इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स. तो एक टाइमलाइन फॉर 25 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये रखना चाहिए. प्लान मैंने आपको एक सैंपल भी दिया था और मेरा ये मानना है कि 10 घंटे आपको निकालना है. अभी विद क्लासेस निकालिए जो भी कर रहे. इफ यू हैव 4 आवर क्लासेस गुड, 6 थोड़ा सा चैलेंज है, तब क्या कर देना, तब 2 घंटे और निकालो. एंड अभी भी सक्सेस आया नहीं है. अभी क्या है, गोल, टाइमलाइन प्लस प्लान. एंड आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू कम एंड शो मी देयर प्लान, बिकॉज एटलीस्ट they will be able to show me the intention to clear the exam. अभी तो मेरे पास इंटेंशन ही नहीं आई है. I'm waiting for students to first decide what is the goal, decide a date they want to complete it, and then plan, and then come to me and I'll say इससे नहीं होगा यार, इसमें ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है. I know this serious boy or girl has an intention, है ना. ये तब से सर प्लीज टेल अबाउट व्हाट टू डू फॉर इंग्लिश. इसको कोई मतलब नहीं है. ये 6th क्लास भी हो सकता है, 7th क्लास भी हो सकता है. इंग्लिश बताइए. अभी ये क्लास यूपीएससी है या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेटा, ग्रामर भी रटना और वोकैबुलरी भी रटना. तब से वो लगा हुआ है इंग्लिश बताइए इंग्लिश बताइए इंग्लिश बताइए. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गोल. अब एक बात बताओ, एनी गोल व्हेन आई सेड, उसमें भी अप्लाई होगा कि इंग्लिश में भी होगा या नहीं होगा? तो ये हर एक टीचर से पूछेंगे सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी. ही वांट्स टू टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, ईट इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश. वो वाली करनी नहीं है. और अभी इनको आंसर दिया था कि एनसीईआरटी करिए, ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा बोलिए. डिड दैट रजिस्टर टू हिम? नो सर, प्लीज इंग्लिश का बताइए. और हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए कि अंग्रेजी में बताऊंगा समझ नहीं आएगा. आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल नाउ. तो मुझे क्या चाहिए? गोल तो है ही, दूसरा एक टाइमलाइन और प्लान. इसके बाद दिल्ली में सर्दी पड़ेगी, मैं बढ़िया गाजर का हलवा खाऊंगा, पेट भर के नींद आएगी, सो जाऊंगा. तो फेल है. कंसिस्टेंट एक्शन, दिस इज इक्वल टू योर रिजल्ट. यहां तक तो आप यहीं पर नहीं कमिट कर रहे मुझे. तुम लोग कितना मतलब बहाना बना रहे हो, सोचो. एक्शन पे तो आने ही नहीं, बात बात पे एक्शन कर देते हैं. सर आज पढ़ दूंगा, ये पढ़ दूंगा, ऊपर. कंसिस्टेंट एक्शन. तो सैटरडे आई वाज बिजी, बट संडे आई सेड अब कोई काम नहीं. आई रियली वांटेड टू टेक अ ब्रेक. 2-3 लोगों का बिकॉज इंटरव्यू का डैफ भरना है, तो दे कॉल्ड मी कि सर ये हॉबीज में लिखना है नहीं लिखना. ओनली दे आई अटेंडेड टू. एंड मैंने कहा मैं कोई काम नहीं करूँगा. So that's my day off. So I'm saying consistent means now I'm working, so I want you also to work.
जब छुट्टी लेनी हो कंसिस्टेंटली लो, अगर कुछ मिस हो जाता है इट्स ओके, यू विल गेट टाइम टू डू दैट। ये टाइम टेबल ऐसा बनेगा कि 10th मार्च को अगर आपने सिलेबस खत्म कर दिया, ट्रस्ट मी, मार्च पूरा है, अप्रैल भी है और मई भी है, you will have times to consolidate, times to practice, many things will happen. Do we get that? So that's where I want to start, whether it is your English. And remember, I asked you to look for 3 goals in your life.